real and apparent weight. वेट को हम डिफाइन क्या करते हैं, एक डेफिनेशन तो इसकी क्या बनती है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर्स. द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. नॉर्मल हालात में अगर एक बॉडी ज़मीन पे है, रेस्ट पे है, तो उस वक्त तक तो ये इक्वेशंस, ये सारी डेफिनेशन जो है वेट की, वो जस्टिफाइड है और सही बनती है. लेकिन अगर बॉडी मूविंग कंडीशंस के अंदर है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में, तो फिर जो है ये डेफिनेशन जो है वहाँ पूरी नहीं उतरती. तो अनदर डेफिनेशंस, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस is equal but opposite to the force required to prevent the body from falling. Weight of an object in certain frame of reference is equal but opposite to the force required to prevent the body from falling. एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मैंने मार्कर को उठाया हुआ है, मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, ये कमरा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इस कमरे के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मार्कर मेरे हाथ पे है. यकीनन इसके ऊपर जो फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको गिरने से बचा रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैंने अपने हाथ से कितनी फोर्स लगा रखी, इक्वल बट अपोजिट टू इट्स वेट. तो मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो क्या कहूँगा कि अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा देता इसके वेट से, तो बॉडी को ऊपर मूव करना चाहिए. जैसे जी मेरा हाथ इसको बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो है उसके वेट से ज़्यादा है. और अगर मैं कम फोर्स लगाऊं तो इसको डाउन जाना चाहिए, जबकि ये सपोर्टेड है, रेस्ट के ऊपर है, और यकीनन जो इसका वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो मैंने उसको सपोर्ट किया हुआ है, तो मैंने कितनी फोर्स लगा रखी है, इक्वल बट अपोजिट टू इट्स वेट. So the weight of an object is in certain frame of reference is equal but opposite to the force required to prevent the body from falling. मज़ीद आगे चलते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं. In order to explain the concept of apparent weight, हम एक एलिवेटर्स का आइडिया जो है वो लेते हैं. In order to explain the concept of apparent weight, we consider a body in a lift. इसको हम as shown डायग्राम के अंदर शो करते हैं कि here is a spring balance, body of mass m is suspended by this spring balance. Here is observer जो नोट करेगा कि what is the reading of the spring balance. In order to explain the concept of apparent weight, we consider a body in a lift. इसको एलिवेटर भी बोलते हैं, as shown. First of all, let elevator is at rest. Elevator is at rest. If the elevator is at rest, then object inside the elevators which is attached with this spring, that is also at rest. So when elevator is at rest, body attached with the spring is at rest. There are two forces acting on the body. Number one, weight of the body acting vertically downward, and number two, T, tension in the spring called apparent weight, called apparent weight of the body. So net force acting on the body, net force acting on the body किसके बराबर है? This is T minus W equal to 0, because these two are equal but opposite bodies at rest.
सो यहाँ से T is equal to W या apparent weight is equal to actual weight. So when the body is at rest inside the elevators attached with the spring, then apparent weight means जो spring balance की reading है उसको apparent weight कहा जाता है. That is very much equal to the actual weight of the body. Now the other situation, if elevator is moving up, elevator is moving up with certain acceleration. अगर ऐसी बात होगी तो जो बॉडी है that will also moves up and with the same acceleration as that of the elevators. So now since elevator is moving up, so body is moving up. That is upward force T is greater than downward force W. So the net force acting on the body T minus W. This is F net. According to Newton's second law, F is equal to ma. Therefore T minus W is equal to ma, या T is equal to W plus ma. This is mg plus ma. So we conclude that T is greater than mg. In other words, apparent weight increases when a body moves against the force of gravity. Apparent weight बढ़ जाता है जब कोई बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन. और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए ज़ीरो हो जाएगा और टी इज इक्वल टू mg होगा. याद रखें इस बात को. तो स्पीड जितनी भी हो, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो ए ज़ीरो हो जाएगा और वही पहले वाली बात टी इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा. ज़्यादा इंक्रीज का कंसेप्ट जो है, अपेरेंट वेट का इंक्रीज का कंसेप्ट जो है वो एक्सेलेरेशन के साथ. ठीक है. तीसरा केस है कि एलिवेटर इज मूविंग डाउन. थर्ड केस, elevator is moving down. So if elevator is moving down, then body moves down also. That is W is greater than T. Actual weight is greater than apparent weight. So the net force acting on the body W minus T. According to Newton's second law, W minus T is equal to ma. T is equal to W minus ma. This is mg minus ma. It is very clear from this question that T, that is apparent weight, is less than that of actual weight by an amount ma. अब इसका जो डिक्रीज होना जो है वो उस बॉडी के डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा. दैट इज apparent weight is less than the actual weight. इसी में in case of free fall A is equal to G होता है, तो P किसके बराबर हो जाएगा? mg minus mg is equal to 0. apparent weight is 0. Apparent weight is 0. Spring balance reading is 0. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? 0 होगी. Even if body is attached to the spring and
the elevator is freely falling, body is also freely falling. Under this condition, spring balance reading will be 0. स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग का 0 होने का मतलब होगा कि बॉडी का अपेरेंट वेट 0 है ड्यूरिंग फ्री फॉल. ये टाइमिंग है. ड्यूरिंग फ्री फॉल स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 होगी. इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज 0 एंड नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग. तो ये हमारे पास ये अल्टीमेट बात है. इसमें चंद बातें और ऐड कर दूं थ्योरेटिकली कि फिज़िक्स के इस कंसेप्ट्स को हम एक और मैं अंदाज में इंटरप्रेट करता हूं. वो ये है कि फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलेरेशन है वेरी इक्वल टू जी, तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही वो फैक्टर होता है विच प्रोवाइड वेट ऑफ द बॉडी. लेकिन अब उसको एक और ड्यूटी दे दी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन वेरी इक्वल टू जी. दैट्स व्हाई अपेरेंट वेट बिकम्स 0. सो व्हेनेवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड टू प्रोवाइड सम अदर parameters like acceleration very equal to g, yeah, that is used to provide centripetal force to the satellite. सारी की सारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट्स. तो उस वक्त द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट इटसेल्फ दैट विल बी वेटलेस, दैट विल बी वेटलेस. तो ये बात जहन में रखना कि एनी बॉडी विच इज फ्रीली फॉलिंग या दैट इज इन द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ दैट इज फेसिंग the situation of weightlessness, that is its apparent weight will be 0 in that condition.